I Rahul Mishra, and today we are going to discuss about new topic, natural and synthetic rubber. Now in this lecture we will discuss about some natural and synthetic rubbers. So listen, we all know that natural and synthetic rubber are the examples of elastomer. So first we will discuss what are natural rubbers. Natural rubbers क्या हैं? So natural rubbers are obtained from Hevia brasiliensis plant. नेचुरल रबर जो है एक प्लांट से बनाई जाती है जिसका नाम है हेविया ब्रासिलियंसिस प्लांट. सो लिसन हियर, दिस प्लांट कंटेन a milky substance. This plant contain a milky substance, latex, which is found in this plant that contain 30 to 60% rubber, in which 1% acetic acid is added for coagulation. It means इस हेविया ब्रासिलियंसिस प्लांट में एक मिल्की सब्सटेंस या दूधिया पदार्थ पाया जाता है जिसमें 30 से 60% रबर पाई जाती है. एंड लिसन, वी ऐड 1% एसिटिक एसिड इनटू इट. हम इसमें 1% एसिटिक एसिड भी ऐड करते हैं फॉर कोएगुलेशन. किसके लिए? कोएगुलेशन के लिए. इट मीन्स कोएगुलेशन मीन्स वी कैन से एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल. इट मीन्स पार्टिकल्स का इकट्ठा होना ही क्या कहलाता है? कोएगुलेशन. सो लिसन हियर, वी कैन से natural rubber is obtained from Hevia brasiliensis plant and it contain a milky substance, latex, which contain 30 to 60% rubber and 1% acetic acid is added into it for coagulation. So listen, natural rubber is the polymer of isoprene. So what is isoprene? It means it is a polymer of isoprene. So we can say isoprene is the monomer unit. Of natural rubber. So natural rubber is also called as polyisoprene. So what will be its monomer unit? We all know that when we remove this poly word, then its monomer unit will be obtained and its monomer unit will be isoprene. So listen here. So how will you make natural rubber? So natural rubber is obtained by polymerization of isoprene monomer unit. It means जब isoprene monomer unit, जिसका फार्मूला ये है, this is the formula of isoprene monomer unit. And listen, when isoprene monomer unit is polymerized, then it will form polyisoprene. So listen, reaction is very simple. So first we have to know about the formula of isoprene. So isoprene is 2-methyl 1,3 butadiene. 2-methyl 1,3 butadiene. Listen here. So how many carbons are there? 1, 2, 3, 4. 4 carbons are there. It means root word is but. So listen, 2 second carbon contain methyl. So this is 2-methyl. So listen,
1 and 3 position contain double bond. 1 and 3 position contain double bond. So listen here, this is called as 2-methyl 1,3 buta, because double bond is repeated, so but becomes buta, and ene are double bond repeated 2 times, so this is called as 2-methyl 1,3 butadiene. So what is isoprene? Isoprene is 2-methyl 1,3 butadiene. So listen here, when isoprene is polymerized, then it will form polyisoprene. So listen, reaction is very simple. In this reaction double bond gets shifted. डबल बॉन्ड क्या होता है? शिफ्ट होता है. इट मीन्स हमको सिर्फ ये याद करना है, वी हैव टू रिमेंबर ओनली दैट डबल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल. डबल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल, and single bond get converted into double. Single bond get converted into double, and double bond get converted into single. So listen here, and we all know that corner, when this bond will get converted into single, then there will be free valency. So free valency is represented by single bond. So this free valency is represented by single bond. So listen, what is the formula of polyisoprene? It will be CH2 single bond CH, single bond CH3, double bond CH, single bond CH2, single bond whole of N. So this is the formula of polyisoprene. So listen here, you have to remember there are two form of polyisoprene. First form is called as cis form, and second form is called as trans form. So cis form is called as natural rubber, and trans form is called as gutta-percha rubber. So cis form is called as natural rubber, and trans form is called as gutta-percha rubber. So what is the use of natural rubber? We all know that rubber is used in making tires of vehicles, belts and toys. It means रबर, नेचुरल रबर का यूज व्हीकल या वाहनों की टायर बनाने में, बेल्ट बनाने में और खिलौने बनाने में किया जाता है. Now this was natural rubber. Now we will discuss most important process for your board examination, and it is, listen here, this process is vulcanization of rubber. Vulcanization of rubber. So what is vulcanization of rubber? So listen here, it is a process in which natural rubber is heated at 373 to 415 Kelvin with sulfur to improve its properties. So listen here, vulcanization of rubber. What is vulcanization of rubber? So it is a process, यह एक तरह की प्रोसेस है जिसमें नेचुरल रबर या पॉलीआइसोप्रीन के दो मॉलिक्यूल को हीट किया जाता है. किस टेम्परेचर पर? 373 टू 415 केल्विन विद सल्फर. इट मीन्स सल्फर के साथ. तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें नेचुरल रबर को या पॉलीआइसोप्रीन को सल्फर के साथ 373 से 415 केल्विन पर हीट किया जाता है, तो हमें जो रबर मिलती है, देन रबर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज वल्कनाइज्ड रबर. देन रबर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज वल्कनाइज्ड रबर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन. और ये प्रोसेस क्या बोली जाती है? वल्कनाइजेशन. सो लिसन हेयर,
वाई दिस प्रोसेस इज डन, ये प्रोसेस क्यों की जाती है। दिस इज योर क्वेश्चन, इट विल बी योर क्वेरी, ये आपकी क्वेरी होगी कि ये प्रोसेस क्यों की जाती है। सो लिसन हियर, दिस प्रोसेस इज कैरिड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ रबर। इट मीन्स रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसका वल्कनाइजेशन किया जाता है। और वल्कनाइजेशन में हम लोग रबर, नेचुरल रबर या पॉली आइसोप्रीन के 2 मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, सल्फ़र के साथ हीट करते हैं। और हीट करने के बाद हमें रबर जो मिलती है उसमें सल्फ़र का एडिशन हो जाता है और इस रबर को हम लोग वल्कनाइज्ड रबर कहते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग वल्कनाइजेशन कहते हैं। एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो लिसन हियर, व्हाट इज वल्कनाइज्ड रबर। सो वल्कनाइज्ड रबर हैज़ some properties and it is improved form of natural rubber. It means vulcanized rubber है क्या, ये नेचुरल रबर की इम्प्रूव्ड फॉर्म है जिसमें नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाइड हो जाती हैं या इम्प्रूव हो जाती हैं। सो लिसन हेयर, व्हाट प्रॉपर्टीज़ विल गेट इम्प्रूव्ड इन वल्कनाइज्ड रबर। सो लिसन हेयर, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ इट हैज़ हाई कैपेसिटी टू कैरी वेट। इट मीन्स इसकी वेट कैरिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये ज़्यादा लोड को लेकर आ जा सकती है। इट मीन्स इसकी कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा हो जाती है वेट को बेयर करने की। फॉर एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टूड इट फ्रॉम द यूज ऑफ रबर इन टायर। हम रबर का टायर में यूज जो होता है उससे हम ये चीज़ समझ सकते हैं। सो लिसन, वल्कनाइज्ड रबर हैज़ हाई वेट कैरिंग टेंडेंसी और वेट कैरिंग कैपेसिटी। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट इज इट हैज़ लो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं जितनी भी रबर हैं अगर वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होंगी तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी और अगर कम सॉल्युबल होंगी तो वो ज़्यादा दिन तक चलेंगी। इट मीन्स वल्कनाइज्ड रबर हैज़ लो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। इसका मतलब जो वल्कनाइज्ड रबर है उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, इसलिए वो अच्छी रबर मानी जाती है। सो लिसन, next point is it is more elastic and insulator of electricity. It means ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है और इलेक्ट्रिसिटी की इंसुलेटर होती है। इलास्टिक मतलब लचीली, तो रबर जितनी ही लचीली होती है उतनी ही अच्छी मानी जाती है। सो इट इज़ मोर इलास्टिक एंड इट इज़ इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस वाज योर नेचुरल रबर। Now we will discuss next type of rubber which is called as synthetic rubber. अब हम लोग अगली रबर डिस्कस करेंगे जिसको सिंथेटिक रबर भी कहते हैं। So what is synthetic rubber? Synthetic, it is clear from its name. Synthetic मतलब प्रिपेयर की गई या लैब में सिंथेसाइज की गई, लैब में बनाई गई। इट मीन्स इट विल बी मैन मेड पॉलीमर। ये कैसा पॉलीमर होगा, मैन मेड पॉलीमर। सो लिसन हेयर, व्हाट इज सिंथेटिक रबर। इट इज़ फर्स्ट मेड बाय हॉफमैन इन 1909। इसका मतलब इसे सबसे पहले हॉफमैन ने 1909 में बनाया था। इट्स मोनोमर यूनिट इज 1,3 ब्यूटाडाइईन। इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो 1,3 ब्यूटाडाइईन होती है। सो लिसन हेयर, हमें पता है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबर वाज 2-मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइईन। नेचुरल रबर की मोनोमर यूनिट क्या थी, 2-मेथिल
1,3 ब्यूटाडाइईन विच इज आल्सो कॉल्ड एज आइसोप्रीन, जिसको और भी क्या कहा जाता है, आइसोप्रीन। बट लिसन, द मोनोमर यूनिट ऑफ सिंथेटिक रबर इज 1,3 ब्यूटाडाइईन। So listen here, synthetic rubber is of two type. First one is Buna S rubber. Buna S rubber. So it is very very simple and it is very important for your exam. Very important for your exam. So listen here. What is Buna S? Buna S rubber is also called as SBR. SBR means styrene ब्यूटाडाइईन रबर। इसका मतलब इसकी दो मोनोमर यूनिट हैं, पहला स्टायरीन, बी से ब्यूटाडाइईन एंड रबर। आर GRS, it is also called as GRS. So what is GRS? GRS is government rubber styrene. Government rubber styrene. Or it is also called as styrene butadiene rubber. So listen here, we can say what is Buna S rubber. It is obtained by the copolymerization of 1,3 butadiene and styrene in the presence of sodium metal. So listen here, it is very very simple. And listen, its polymerization reaction can be understood from its name. It means इसकी जो polymerization reaction है उसको हम लोग इसके नेम से ही समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज गिवन इनटू दिस बॉक्स, या इस बॉक्स में दिया गया है। सो लिसन हियर, हाउ कैन यू अंडरस्टूड इट, आप इसको कैसे समझ सकते हैं। सो लिसन, वी कैन अंडरस्टूड इट फ्रॉम, सो ब्यूना, BU मीन्स ब्यूटाडाइन, BU मीन्स 1,3 ब्यूटाडाइईन। Na means sodium, Na means sodium, S means styrene। इसका मतलब जो ब्यूना S नेम है वो सारी मोनोमर यूनिट बता देता है, और ये दोनों मोनोमर यूनिट किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करती है वो भी बता देता है। इट मीन्स वी कैन से Buna S rubber is obtained by 1,3 butadiene monomer unit and styrene monomer unit. When these monomer unit polymerize in the presence of sodium, or Na, then it will form what? Then it will form Buna S rubber. So listen, reaction is very simple. Reaction is very simple. So how can you understood this reaction? So listen here, we all know that styrene is CH, single bond phenyl, double bond CH2. We all know that in case of polymerization or during polymerization there is shifting of double bond, सो डबल गेट सिंगल, जितने भी डबल बॉन्ड हैं सब सिंगल हो जाएंगे और सिंगल वाले सब डबल हो जाएंगे। तो डबल यहाँ था, यहाँ आप देख सकते हैं ये सिंगल हुआ, फिर यहाँ सिंगल था, फिर ये डबल हो गया, फिर ये डबल था, फिर ये सिंगल हो गया, और हमको दिख रहा है कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ का जो डबल बॉन्ड था, ये जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, सिंगल, और ये सिंगल बॉन्ड किससे जुड़ जाएगा, इस CH से। इट मीन्स CH2, वी कैन से CH2, ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इट मीन्स CH2 सिंगल बॉन्ड CH, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। सो लिसन हियर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और उसके बाद ये डबल फिर सिंगल हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड सिंगल होके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये CH सिंगल बॉन्ड CH2,
CH सिंगल बॉन्ड CH2 हम यहाँ से देख सकते हैं, CH सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और ये जो आपका डबल बॉन्ड था उसका एक बॉन्ड आगे बढ़ जाएगा, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा कुछ ए यहाँ पर। सो CH2 ये पहले से बना हुआ है, CH2 सिंगल बॉन्ड। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल डबल बॉन्ड को सिंगल करना है और सिंगल बॉन्ड को डबल कर देना है और मोनोमर यूनिट को जोड़ देना है। इट मीन्स वी हैव टू चेंज ओनली डबल इनटू सिंगल एंड सिंगल बॉन्ड इनटू डबल, एंड वी ऐड these two monomer units. So listen, this obtained new polymer will be called as Buna S polymer or Buna S rubber. This is also called as Buna S rubber. Now next polymer is, or next rubber is Buna N rubber. Buna N rubber. So before we studying Buna N rubber, we have to know some usage of Buna S. पहले हम लोग कुछ यूज जान लेते हैं Buna S के. So we all know that Buna S is a rubber, so it is used in making tires, shoe heels, insulated wire and gasket. It means इसका उपयोग या इसका यूज टायर बनाने में, शू हील बनाने में, इंसुलेटेड वायर बनाने में और गैस्केट बनाने में किया जाता है. नाउ व्हाट इज ब्यूना एन रबर? सो लिसन हियर, ब्यूना एन रबर, इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम. Bu means 1,3 butadiene. Bu means 1,3 butadiene. Na means sodium and N means acrylonitrile, or we can say this is nitrile. So what is acrylonitrile? We all know that acrylonitrile is CH2 double bond CHCN. CH2 double bond CHCN को acrylonitrile monomer unit कहते हैं. So Bu means what? Bu means 1,3 butadiene. It means Buna N will give all the monomer unit of this rubber. It means जो Buna N नाम है यही एक्सप्लेन कर देता है कि इस रबर की दोनों मोनोमर यूनिट क्या है. So Bu means 1,3 butadiene. Na means सोडियम. इसका मतलब ये जो रिएक्शन हो रही वो सोडियम की प्रेजेंस में हो रही. This N means nitrile या acrylonitrile. This is called as acrylonitrile. So when 1,3 butadiene and acrylonitrile rubber polymerize in the presence of sodium, or when 1,3 butadiene and acrylonitrile monomer unit get polymerized or heated in the presence of sodium, then they will form Buna N rubber. Then they will form Buna N rubber. So you have to know. आपको क्या जानना होगा? So listen, double bond is converted into single and single is converted into double. केवल हमको करना क्या है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए जितने भी डबल हैं सबको सिंगल कर देना है. यहाँ डबल था तो यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल था तो यहाँ डबल, यहाँ डबल था तो यहाँ सिंगल, फिर यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ सिंगल आ जाएगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो यहाँ सिंगल आ गया है. मैंने इसको एरो से दिखाया हुआ है. सो लिसन हियर, यहाँ आपका सिंगल आ गया, सिंगल के बाद डबल वाला सिंगल हो जाएगा तो ये आपका सिंगल हो गया. फिर ये डबल का एक बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट हो गया है तो यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा सिंगल. सो लिसन हेयर, दिस इज कॉल्ड एज ब्यूना एन रबर. ब्यूना एन रबर. सो व्हाट इज द यूज ऑफ ब्यूना एन? इट एक्ट्स एज ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रेजिस्टेंस. इट मीन्स ये ऑयल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट
में सॉल्युबल नहीं होती है। ये उसका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मीन्स उसका अवरोध करती है, उसको रोकती है, उसको घुलने से या उसमें घुलने से ये रोकती है। इट मीन्स इट इज़ गुड रबर, इट इज़ अ गुड क्वालिटी रबर। सो लिसन हियर, इट इज़ यूज्ड और इट एक्ट्स एज ऑयल सील। ये ऑयल सील की तरह भी वर्क करती है। सो लिसन हियर, these are the Buna S and Buna N rubber, and these are very important for your UP board examination. And listen, vulcanization of rubber was also very important topic for your board examination. So thank you.